Good morning, dear students. I hope you are fit and fine. So, today is Monday and we are starting a new week ahead. And it's your first class. So, let's start this week cheerfully by starting a new chapter of class 6, lesson number 5, that is separation of substances. Now, first of all, we see many substances around us, many objects around us like air, water, soil. Summers are going on, so we drink cold drinks. Many drinks we drink. So, what are all these? These all are the mixtures. Mixture means they are made up of two and more than two substances. Almost all the objects around us, nearly all the objects are called mixtures. So let's first study about what are mixtures and what are pure compounds, pure substances. So first of all, coming to the pure substances. Pure substances are made up of only one type of particles. Example, all elements and compounds. Now, pure substances are those substances that have only one particles in it. Means pure का क्या मतलब हुआ? Pure जिसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई mixing नहीं है. तो जिसमें सिर्फ एक टाइप के particles present हैं, that is a pure substance. Example we can say elements, all the elements like oxygen, hydrogen, nitrogen, sodium. These all are the example of pure compounds because they are made up of only single particle, single element. Okay. Now coming to mixtures, what are mixtures? Mixtures contains two or more different substances called components. Mixtures जिसमें mixture जैसे कि नेम से ही आपको पता लग रहा है मिक्सिंग है उसमें two or more than two substances की. तो वो substances जो दो या दो से ज़्यादा particles या we can say substances से मिलके बने हैं उनको हम mixtures कहते हैं. And those substances are known as components. जिन substances से मिलके mixture बना है उनको हम component कहते हैं. Let us take the example of air. Examples here it is written air, water and soil. Air we have studied that it is a mixture of many gases. बहुत सारी gases present है air में. Water is a mixture of minerals and hydrogen and oxygen. So water is also not the pure compound. Okay, soil is a mixture of many substances. Sand present है, rocks present है उसमें, pebbles present है, minerals present हैं. So most of the objects around us are called the mixtures. I hope you have got the difference between the pure compounds and the mixtures. Pure compounds जो सिर्फ एक टाइप के particles से बने हुए हैं, that are the pure compounds, and mixtures that are made up of two or more than two substances or particles that are known as mixtures. And the particles of which substances are made, these are the components or the constituents also we can say. Okay. Now this mixture is of two types. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Now what do you mean by homogeneous and heterogeneous? First is heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture, components are not uniformly distributed and mixture is not same throughout. Now what do you mean by heterogeneous mixture? अब कुछ मिक्सचर हैं जो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड देयर आर सम मिक्सचर्स दैट डू नॉट गेट मिक्स इवनली. अब हम ये एक एग्जांपल देखते हैं लाइक व्हेन योर मदर कुक्स पल्सेस और दाल वी कैन से, देन बिफोर कुकिंग शी सेपरेट्स द स्टोन्स एंड अदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट. दाल में कोई छोटे छोटे स्टोन्स, स्टिक्स पड़े हुए होते हैं तो मदर आपकी पहले उनको सेपरेट करती हैं. और वी कैन से लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. वाटर है, वाटर में मैंने चॉक पाउडर मिक्स किया है. चॉक पाउडर मिक्स करने से क्या हुआ, हाउएवर वट एवर टाइम आई टेक इन मिक्सिंग, मैं कितना भी उसको मिक्स कर लूँ बट आई कैन नॉट गेट द यूनिफॉर्म सॉल्यूशन. यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मीन्स वो चॉक पाउडर वाटर में मिक्स होगा ही नहीं. तो इसको ध्यान से समझेंगे. कॉम्पोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. कंपोनेंट्स जो है यूनिफॉर्मली का क्या मतलब है,
इक्वल क्वांटिटी में, बराबर क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। अब जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, आई हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर लिया है मैंने, उसमें मैं चॉक पाउडर मिक्स कर रही हूँ। मान लीजिए 2 स्पून मैंने चॉक पाउडर मिक्स किया। नाउ आई स्टिर इट कॉन्टिन्यूसली टू डिजोल्व, मैं उसको डिजोल्व करने के लिए मिक्स कर रही हूँ। चॉक पाउडर विल नॉट गेट डिजोल्व। अब क्या होगा, मैं उसको कितना मिक्स कर लूँ, थोड़ी देर बाद क्या होगा, चॉक पाउडर विल सेटल एट द बॉटम। अब जब मैं ऊपर से वाटर लूंगी, उसमें से स्पून से, उस ग्लास में से जिसमें मैंने चॉक पाउडर मिक्स किया है, वहां से वाटर लूंगी तो उसमें चॉक पाउडर के बहुत थोड़े पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। बट इफ आई टेक द वाटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ग्लास, पर मैं ग्लास के बॉटम में से वाटर लूंगी तो वहां पर चॉक पाउडर के बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि चॉक पाउडर नीचे सेटल है, ऊपर उतने ज्यादा नहीं, ऊपर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ही उसके पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब ये है कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मींस कहीं ज्यादा प्रेजेंट है तो कहीं कम प्रेजेंट है। तो ऐसे मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और उसमें क्या होता है, वो उसमें जो कंपोनेंट्स है वो विजिबल है, मींस जो चॉक पाउडर हमने मिक्स करा है वाटर में, वो चॉक पाउडर हमें विजिबल है। ओके, सेकेंड इज मिक्सचर इज नॉट सेम थ्रू आउट। मिक्सचर सारी जगह सेम नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि चॉक पाउडर मैं ऊपर से लूंगी तो वहां पर बहुत कम पार्टिकल्स आएंगे, और नीचे से लूंगी तो वहां पे चॉक पाउडर के ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। तो मिक्सचर हर एक जगह उस वाटर में सेम नहीं है। So such mixtures are called heterogeneous mixture. Now coming to the homogeneous mixture. Homogeneous mixture के example से आपको better समझ में आएगा ये। Components are uniformly distributed. इसमें क्या है, components जो है वो uniformly distributed है, and mixture is same throughout. जितना भी मैंने वाटर लिया है ग्लास में, मिक्सचर में कंपोनेंट्स जो है वो पूरे सेम होंगे। कैसे होंगे, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। नाउ आई हैव टेकन अ सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ ग्लास, उतना ही मैंने पानी लिया है जितना मैंने हेट्रोजीनियस मिक्सचर में चॉक पाउडर मिक्स करने के लिए लिया था। Again I am dissolving the same quantity of sugar. Now this time I am adding sugar in water. यहाँ मैंने heterogeneous mixture में chalk powder mix किया था, यहाँ sugar I am mixing. Now when I dissolve it, the sugar will completely dissolve. Sugar water में completely dissolve हो जाएगी, हमें दिखाई नहीं देगी। एक डिफरेंस मैंने ये भी बताया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स आई कैन सी, विजिबल है कंपोनेंट्स, पर इसमें कंपोनेंट्स विजिबल नहीं होते हैं इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या शुगर डिसॉल्व करने के बाद आपको वाटर में दिखाई देगी? नो। तो इसमें क्या है, अब वाटर में जब मैंने शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व कर ली, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अगर मैं कंप्लीटली डिसॉल्व करने के बाद इफ आई टेक द स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लास, अगर मैं ग्लास के टॉप में से ऊपर से हल्के से मैं स्पून ऑफ वाटर लेती हूँ, देन इट विल that much sweet only if I take the that sugar from the sugar solution from the bottom of the glass. मीन्स जितना कि मैं ऊपर से मैंने जब वाटर लिया वो भी उतना ही स्वीट होगा जितना कि जब मैं नीचे से लूँगी। ऐसा तो नहीं है क्योंकि शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है। अगर शुगर डिसॉल्व नहीं होगी देन इट कैन हैपन, तब उस टाइम जो आपका मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस है क्योंकि शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुई है। बट आफ्टर द कंप्लीट डिसॉल्विंग ऑफ द शुगर हमारा मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस हो चुका है, उसमें कंपोनेंट्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरे जितना भी वाटर मैंने लिया है शुगर की क्वांटिटी उतनी ही है, उतनी ही स्वीटनेस होगी वाटर में, टॉप में भी और बॉटम में भी। एंड मिक्सचर इज सेम थ्रू आउट, और स्वीटनेस अगर सेम है तो मिक्सचर पूरा सेम है थ्रू आउट। ग्लास ऑफ वाटर में मिक्सचर एक ही क्वांटिटी में शुगर प्रेजेंट है और मिक्सचर सेम है, उतनी ही स्वीटनेस है पूरे ग्लास ऑफ वाटर में। नाउ आई होप आपको हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस क्लियर है। अगेन आई एम सेइंग heterogeneous mixture is a mixture in which components are not uniformly distributed and mixture is not same throughout, जिसमें constituents और components uniformly distributed नहीं होते हैं, कहीं ज़्यादा present है कहीं कम present है और mixture same नहीं है। That और उसमें components visible हैं, हम देख सकते हैं।
तो that type of mixture is heterogeneous mixture and the mixture in which components get completely dissolved, बिल्कुल dissolve हो जाते हैं और components are uniformly distributed and mixture is same throughout, mixture same होगा पूरे उसमें, तो such mixture is known as homogeneous mixture. I hope now you have got the concept of heterogeneous and homogeneous mixture. Now coming to properties of mixtures. अब mixture हमने क्या पढ़ा, mixture नाम से ही पता लग रहा है कि किसी चीज की mixing है, मतलब दो या दो से ज्यादा substances present हैं. तो अब हम properties पढ़ते हैं mixture की. First is physical change. Now I think you have read in 5th class that what is a physical change and what is a chemical change. Physical change कौन सा change होता है? In which no new substances are formed. फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है और जो कंपोनेंट्स हैं वो हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं. केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन अकर्स एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है. तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी ये है कि फिजिकल चेंज होता है मिक्सचर में. मीन्स फिजिकल चेंज है, इसका मतलब कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है और जो प्रॉपर्टीज है उसकी मीन्स मतलब जो आपका मिक्सचर है उसमें से हम कंपोनेंट्स को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स. सेकेंड इज होमोजेनिटी. होमोजेनिटी आई हैव एक्सप्लेन होमोजेनियस मिक्सचर. मिक्सचर आपके दो तरीके के हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजेनियस मिक्सचर. ये मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है. मीन्स कंपोनेंट्स जो है कहीं ज़्यादा होंगे कहीं कम होंगे. अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो अगर होमोजेनियस मिक्सचर है तो कंपोनेंट्स सेम होंगे, मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरिएबल कॉम्पोजिशन. नाउ वेरिएबल कॉम्पोजिशन का क्या मतलब हुआ? वेरी करना मीन्स क्या होता है? डिफरेंस है किसी चीज में. तो कॉम्पोजिशन का मतलब अगर मिक्सचर हेट्रोजीनियस है तो ऑब्वियसली जो उसकी कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल होगी. वेरिएबल का मतलब जो कंपोनेंट्स हैं वो कहीं ज़्यादा हैं तो कहीं कम है, तो कॉम्पोजिशन सेम नहीं है. इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इट इज. फोर्थ है आपका सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड्स. इसमें हम जो कंपोनेंट्स हैं फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं. दिस वी विल गोइंग टू स्टडी इन डिटेल दैट हाउ कैन वी सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. फिफ्थ पॉइंट इज नो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. नो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मीन्स एज इट इज अ फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म. फिजिकल चेंज है तो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है और जो भी कंपोनेंट्स मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं. मतलब आपके जो दो सब्सटेंसेस हैं उनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी रहेगी. क्योंकि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो कोई न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म नहीं होगी. सो दीज ऑल आर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स. Till now we have read about what are pure compounds, pure substances and what are mixtures. Now I have already told you that almost all the subjects, all the objects are mixtures. Mostly जो भी हमारे आसपास जितने भी objects हैं वो किसी ना किसी से मिलकर बने हुए होते हैं, प्योर नहीं होते हैं. बहुत ही कम objects हैं जो प्योर हैं. So mainly all the objects are mixtures. Even the food that we eat, it is a mixture. Mixture है क्योंकि एक चीज का नहीं है, फूड में कई सारी चीजें मिक्स होती हैं. So it is a mixture. So air, water, soil, I have given you the example previously. These all are the mixtures. So we need to separate the mixtures. Means we need to separate for our desire. तो वाई डू वी नीड टू सेपरेट देम? क्यों हम मिक्सचर में से क्यों जो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उसको क्यों सेपरेट आउट कर रहे हैं? सो नेक्स्ट टॉपिक हियर वी विल गोइंग टू डिस्कस इज नीड फॉर सेपरेशन. क्यों सेपरेशन करना है हमें सब्सटेंसेस का? सो फर्स्ट इज टू रिमूव हार्मफुल और अनवांटेड कंपोनेंट्स. हार्मफुल और अनवांटेड कंपोनेंट्स रिमूव करने के लिए, like I have given you the example, before cooking the dal your mother
look for the stones, husks or insects present in it. छोटे छोटे insects भी होते हैं उसमें, दालों में, तो उसको पहले सेपरेट करने के लिए बिफोर कुकिंग मदर आपकी उनको सेपरेट करती हैं. वाई? बिकॉज दोज आर दी अनवांटेड कंपोनेंट्स. वो अनवांटेड कंपोनेंट्स है, हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है. हार्मफुल कंपोनेंट्स रिमूव करने के लिए. हार्मफुल कंपोनेंट्स मीन्स, अब आपने देखा होगा कि वी रिसीव वाटर फ्रॉम द गवर्नमेंट थ्रू वाटर सप्लाई. वाटर सप्लाई जो होती है, जो गवर्नमेंट की सप्लाई होती है, वाटर सप्लाई, व्हाट गवर्नमेंट डू इज, दैट इज द रिवर वाटर. रिवर में से आता है वो वाटर, तो ऑब्वियसली वो वाटर प्योर तो होगा नहीं. देयर आर मैनी डस्ट, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट दैट आर हार्मफुल फॉर अस. उसमें केमिकल्स प्रेजेंट होंगे या कुछ होगा जो हमारे लिए हार्मफुल होता है. तो बिफोर सप्लाइंग इट टू अवर हाउसेस, गवर्नमेंट ट्रीट्स दैट वाटर. गवर्नमेंट उस वाटर को ट्रीटमेंट करके उसको सुइटेबल बनाती है हमारे कंजम्पशन के लिए. तो उसमें से वो जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको सेपरेट आउट करती है. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन दैट व्हाई डू वी नीड सेपरेशन. हमें क्यों सेपरेशन करना है? टू रिमूव हार्मफुल और अनवांटेड कंपोनेंट्स. One more example I am giving you. Every day in the morning your mother prepares tea. टी बनाती है, चाय बनाती है मम्मा. After it gets cooked, टी जब बन जाती है, your mother separate the tea leaves from that tea. टी लीव्स हम डालते हैं, उसको मदर सेपरेट करती है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेनर. स्ट्रेनर की हेल्प से टी लीव्स को सेपरेट करती है. क्या हम चाय पत्ती के साथ पीते हैं? टी लीव्स के साथ ड्रिंक करते हैं टी? नहीं. तो क्यों? क्योंकि वो अनवांटेड मटेरियल है. वी डोंट नीड टी लीव्स. टी लीव्स का जो काम था वो हो गया, अब हमें टी लीव्स की जरूरत नहीं है. सो वी नीड टू सेपरेट इट. तो दिस इज द फर्स्ट रीजन दैट व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस. सेकेंड इज टू सेपरेट डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. सेकेंड रीजन है सेपरेट. उसमें किसी एक चीज में दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं प्रेजेंट. जो भी दो कंपोनेंट्स हैं, हमें उन दोनों को सेपरेट करना है. क्यों? क्योंकि दोनों का ही अलग अलग यूजफुल है, अलग अलग यूज है. एग्जाम्पल, बटर निकालती हैं आपकी मम्मी, बटर बनाती हैं. कैसे बनाती हैं बटर? फ्रॉम द क्रीम ऑफ द मिल्क. मिल्क में से जो क्रीम निकलती है उसमें से मम्मी बटर प्रिपेयर करती हैं. तो मिल्क भी हमारे लिए यूजफुल है, वो बटर भी हमारे लिए यूजफुल है और क्रीम भी हमारे यूजफुल है. तो चर्निंग ऑफ मिल्क हम कह सकते हैं एक एग्जाम्पल है जिसमें से टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट सेपरेट आउट होते हैं. दोनों ही हमारे लिए यूजफुल है. तो ये सेपरेशन हम इसलिए भी एक सेपरेशन करते हैं. अगर मिल्क में से हम क्रीम को सेपरेट नहीं करेंगे तो हमें बटर नहीं मिलेगा. तो हमें अलग चीजें निकालने के लिए जो कि हमारे लिए यूजफुल है, सेपरेशन की जरूरत पड़ती है. थर्ड इज टू ऑब्टेन हाईली प्योर सैंपल्स ऑफ सब्सटेंसेस. किसी भी सब्सटेंस का हाईली प्योर फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए. वन एग्जाम्पल इज डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर आप लोगों ने सुना है या पता नहीं. वाटर को डिस्टिल्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द apparatus और with the help of the machines. distilled water बनाया जाता है and that distilled water is used in the laboratory for many purposes. केमिस्ट्री लैब में distilled water का बहुत यूज होता है क्योंकि उससे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. अब वाटर नॉर्मली उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, पर जो डिस्टिल्ड वाटर है दैट इज दी जर्म फ्री, इम्प्योरिटीज फ्री वाटर. उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होती हैं. पूरा डिस्टिल्ड होता है, वो वाटर प्योर होता है. तो वो वाटर और भी फर्दर यूजेस के लिए काम आता है. तो किसी भी चीज का हाईली प्योर सैंपल ऑब्टेन करने के लिए भी सेपरेशन जरूरी है. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स बाय ड्यू टू विच वी नीड टू सेपरेट दी सब्सटेंसेस. हमें सेपरेशन की जरूरत पड़ती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल गोइंग टू कवर टुमारो इज द मेथड्स यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेस. अभी तक हमने पढ़ा कि सेपरेशन जरूरी है. क्यों जरूरी है सेपरेशन, किस लिए जरूरी है, रीजंस हमने पढ़े. नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी बाय व्हाट मेथड्स द सेपरेशन इज डन. कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है. दिस वी विल गोइंग टू स्टडी टुमारो. ओके, फॉर टुडे दिस इज द वीडियो. प्लीज वॉच इट केयरफुली. थैंक यू वेरी मच.